Good morning, students. From last 2 to 3 days, we are observing that some students are not watching a single lectures. But if you are not watching the lectures properly, you are facing the problems on next year. Not this year, but next year. You can't understood any single point if you are not observing or if you are not listening lectures carefully. Okay, so be carefully listen each and every lectures. Okay, again and again we are not given a single instructions to you. Compulsory listen lectures very carefully. If you are not listen properly the lectures, you will face so many problems, because in future your economics is going too much difficult. If you are thinking that it is very easy, it is very usable, but compulsory keep in your mind, if you are not listening each and every lectures carefully, you have to face some problems. Okay, the DCS lectures we will stop some reasons, but from some after some time we are started it. Okay, so don't ignore the lectures, listen very carefully. We are watching the chapter number 4, the economy of Maharashtra. In this one we are watching features of economy of Maharashtra. Next one we are watching agriculture sectors of Maharashtra, their problems and their solutions, whatever the Maharashtra government is done. Afterwards we are started the next point, that is industrial sectors. In the last lectures we are watching the industrial sectors is created diversification of market. Second, it generates highest income. And third one we are watching, it's created higher productivity. The annual survey of industry, the government of India is decided from 2016-70. The industrial for industrial sectors, Maharashtra is a famous by the investors mind. Investors are too much thinking about Maharashtra to invest here, and their net value added rate is also high. It is almost 18%. Okay, next point we are watching FDI. The foreign countries are invest in Maharashtra in so many amount. From 2000 to 2017, the Maharashtra the FDI means foreign direct investment, or foreigners are investing 6,11,760 crore rupees. Okay, it is almost 31% FDI flow in only in Maharashtra. We are looking all over the India. Okay, as compared to other state, the FDI is more in Maharashtra. But some problems are facing the industrial sectors also. First one is delay the government procedures, government license agreement, government other policies are not proper, so government are facing so many problems. Next one we are watching, the skill development program have lack of opportunities. In the skill development program are not properly opportunities, so therefore industrial sectors is facing problem. Updated technology we are not using still now. This is one of the more important problem. Next one, infrastructure facilities are not proper. The electricity, the water supply, the technology, the machinery, the raw material, these are not properly available. This is also one of the major problem. When the person is, or any single common person is thinking about the establishment of industry, so many people are not motivate that person, they are always demotivate that person. It is also one of the greater problem. Next one problem, that is lack of development program in our country. Some important areas directly developed, but some areas are not given a single importance for industries. This is we are clear in the last lectures. Now we are discussing the next point, what kind of measurement doing by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से मेजरमेंट निकाले हैं, और उनमें से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ें कही है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट वन, द सिंगल विंडो सेल was initiative to provided all clearance to existence and prospective investors.
अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे जब आते हैं उनको चाहिए होता है, पहले तो चाहिए लैंड, फिर चाहिए लेबर, फिर चाहिए बहुत सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए चीज़ें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ओके, यहाँ के गवर्नमेंट की परमिशंस, यहाँ के गवर्नमेंट के कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स रेट, जीएसटी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सिंगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जाके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ऑफिस है मुंबई में, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, उनको इंडिया में बिजनेस करने के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में उनको अवेलेबल होगी। उनको गवर्नमेंट के जो पेपर चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेपर, देन अप्रूवल लेटर्स, देन लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर्स या बाकी जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ उनको एक जगह पे अवेलेबल होता है, इसलिए उसको सिंगल विंडो सेल कहा जाता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स का ऑफिस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को सब चीज़ें अवेलेबल करके दी जाती है अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे आके, इसलिए इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर बाकी सिटीज़ में जाएंगे इंडिया के तो वहाँ पे WTO के ऑफिस नहीं है, ओके, और अगर ऑफिसेस होंगे तो भी वो सेंट्रल पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन महाराष्ट्र की तरफ अगर देखोगे तो मुंबई में सेंट्रल ऑफिस है वहाँ पे, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मुंबई एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके अपने सारे इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव करियर है, यहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया जाता है कि आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो और इंडस्ट्री बनाओ। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन्स बनाई है, अगर उनकी तरफ आप देखोगे तो वो सीरम वाला इंडिया में कहीं पे भी जाके बना सकता था, लेकिन उसने पुणे में ओपन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ही उसको मोटिवेट किया गया, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ पे ही आएंगे, ओके। बाकी सारी जगह पर भी जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में बाकी सारी जगह पर उनको इतना मोटिवेट नहीं किया जाएगा जितना महाराष्ट्र में अवेलेबल होगा। और विंडो सेल है, 1 विंडो सेल, एक ही ऑफिस में जाके उसको सब मिलेगा, उसको 10 बार 10 जगह पर घूमने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर वो हिमाचल प्रदेश जाएगा तो वहाँ पे WTO का ऑफिस नहीं है, तो अगर वहाँ पे उसको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो लैंड वहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल नहीं, पहला प्रॉब्लम उसको वहाँ पे आएगा, लेबर का प्रॉब्लम आएगा, स्किल लेबर नहीं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं अच्छा मिलेगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो एक सिंगल सेल नहीं मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में उनको सिंगल विंडो सेल अवेलेबल है। दूसरा, महाराष्ट्र ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैत्री नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस ऑफिस में उनको मिलेगी। दैट इज़ महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, जिसको मैत्री कहा जाएगा। यहाँ पे जाकर जो इन्वेस्टर फॉरेनर से आएगा या इंडिया में ही कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन इन्वेस्टर्स को सारी इन्वेस्टमेंट की प्रोसीजर्स वहाँ पे एक जगह पर उनको मिलेगी, जिससे इन्वेस्टर्स को 10 बार 10 जगह पर घूमने की ज़रूरत नहीं है और वो परेशान नहीं होगा। तीसरा है अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्पेस रेंट सब्सिडीज़ आर प्रोवाइडेड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनल एग्जीबिशंस। अभी महाराष्ट्र में और क्या है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ें करेगा उनके लिए अवार्ड है। बिजनेस अवार्ड रिलायंस की तरफ से दिया जाता है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। सब्सिडीज़ है, अगर किसी को कोई ऑफिस चाहिए तो उसको 100 साल के रेंट के लिए वो ऑफिस दिया जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र की जो पुराने गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है, आप लोग देखोगे BMC के ऑफिस है या बाकी सारे, ये ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाए, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको 90 या 90 साल के लिए सब्सिडीज़ रेंट पे दिया है। तो 90 साल तक उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। फिर 90 साल के बाद वो और फिर से एक बार एक्सटेंड करके ले सकते हैं अपना पीरियड। बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट भी एग्जीबिशन के लिए रखे जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उन चीज़ों को बढ़ाया जा सके या एक्सपोर्ट किया जा सके। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा हीरो का मार्केट, डायमंड का मार्केट मुंबई में है, ओके। तो वहाँ पे
बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। उनके सामने ये हीरो के एग्जीबिशंस रखे जाते हैं, तो जिसमें बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को एग्जीबिशन में रख सकते हैं और फॉरेनर्स उनको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेज टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी सेज नाम का एक एरिया बनाया गया है कि वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रहेगा, मतलब वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री ही आपको दिखाई देगी। ऐसे एरिया महाराष्ट्र में न्यू मुंबई, पूना, औरंगाबाद, नागपुर, इन जगहों पर है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनको कोई भी छोटा इन्वेस्टर्स हो या बड़ा इन्वेस्टर्स हो, जिसको यहाँ पे इंडस्ट्री बनानी है, उसके लिए एक एरिया ओपन करके दिया है। वहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली अपनी इंडस्ट्री बना सकता है, वहाँ पे उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। उस एरिया को कहा जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। उसी के साथ और एक प्रोग्राम है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत अगर किसी को महाराष्ट्र में स्मॉल, मीडियम या माइक्रो इंडस्ट्री बनानी है, स्मॉल यानी छोटी, मीडियम इंडस्ट्री बनानी है, या माइक्रो यानी बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए लगने वाला लोन, उसके लिए लगने वाला कैपिटल, उसके लिए लगने वाली इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा। ओके, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसको क्या देना पड़ेगा, अपना एक प्रोजेक्ट देना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको इतना पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट आपको उस चीज़ के लिए सब कुछ चीज़ों के लिए मदद कर सकती है। इसलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर्स। अभी हमारे इंडिया में तीसरा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब मिल रहा है, दैट इज़ सर्विस सेक्टर्स। पहला हमने देखा एग्रीकल्चर्स, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा है सर्विस सेक्टर्स। अभी सर्विस सेक्टर्स में क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस की कंपनियाँ आती है, उसके बाद टूरिज़्म आता है, रिटेल बैंकिंग आती है। रिटेल बैंकिंग यानी हम लोग जिसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहते हैं, वो रिटेल बैंकिंग। एजुकेशन सेक्टर्स इसमें आता है एंड सोशल सर्विसेज भी इसमें आती है। ओके, ये सर्विसेज कई बार बिजनेसमैन खुद कंज्यूमर्स को अवेलेबल करके देता है। बिजनेसमैन खुद कंज्यूमर्स को अवेलेबल करके देता है। ओके, अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हो तो मोबाइल के साथ आपको मोबाइल का इंश्योरेंस भी मिलता है। मोबाइल के साथ आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो पैसे पे करने की फैसिलिटीज़ मिलती है, दैट इज़ रिटेल बैंकिंग। अगर किसी को मोबाइल का नॉलेज नहीं है तो उसको एजुकेशन दिया जाता है, उसका नॉलेज दिया जाता है। तो एक ही जगह पर आपको सारी सर्विस मिलती है, इसलिए उसको सर्विस सेक्टर्स कहा जाता है। ओके, फ़िलहाल अभी इंडिया में ये सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है सर्विस सेक्टर्स। अभी देखो, सर्विस सेक्टर्स इंडिया में अभी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा इसमें जॉब कर रहे हैं। ओके, ये और उसी के साथ इंडिया अभी जो आपको 20 सालों में बहुत डेवलप दिखाई दे रही है, बहुत पैसे वाली दिखाई दे रही है, ये सर्विस सेक्टर्स की वजह से दिखाई दे रही है। ओके, इंडिया में जितनी सारी चीज़ें बेची जाती है, जो इंडस्ट्री में बनती है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बनती है, वो सबसे लास्ट में कंज्यूमर्स को पहुंचाने का काम सर्विस सेक्टर्स कर रहा है। तो इंडिया की GDP में भी सर्विस सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अगर 2017-18 की मेजरमेंट काउंट करोगे तो 15.5%, 54.5% चीज़ें सर्विस सेक्टर से अवेलेबल हुई है, जिसमें इंश्योरेंस होता है, टूरिज़म्स होता है, रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं, एजुकेशन होता है और सर्विस सेक्टर्स होते हैं। सर्विस सेक्टर्स में अभी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बेची जा रही है तो वो कौन सी है, तो पहला है फाइनटेक। फाइनटेक आपको मोबाइल मालूम होगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। IT इंडस्ट्री है, जिसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग और IT से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे है। स्टार्टअप्स प्रोग्राम है, आप जब स्टार्टअप प्रोग्राम यानी बहुत सारी कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया है कि अगर किसी को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो उसके लिए जो चीज़ें लगी वो स्टार्टअप्स से आपको अवेलेबल होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग है,
क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है जो आप मोबाइल फ़ोन या सर्विस सेक्टर से इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी अभी प्रोग्रेस हो रही है। डिफेंस सेक्टर्स में भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। टूरिज़्म हमारा बढ़ रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ओपन हो गई है। ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर्स में आती है और गवर्नमेंट अभी सर्विस सेक्टर्स ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहा है। ओके, एग्रीकल्चर ऑलरेडी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बढ़ाना चालू है और सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है सर्विस सेक्टर्स पे, क्योंकि सर्विस सेक्टर्स ज़्यादा पैसे आपको अवेलेबल करके देगा। ओके, तो इसलिए सर्विस सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया है। ओके, अभी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ सर्विस सेक्टर्स में क्या आता है। तो पहले आता है इंश्योरेंस, दूसरा टूरिज़्म, तीसरा रिटेल बैंकिंग, चौथा एजुकेशन। ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर्स आती है क्योंकि इसमें सर्विस दी जाती है लोगों को। सर्विस सेक्टर्स पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसकी वजह से। और हमारी कंट्री का जीडीपी यानी सबसे ज़्यादा पैसे मिलने वाला जो पार्ट है वो सर्विस सेक्टर्स है, हम लोग कह सकते हैं। सर्विस सेक्टर्स में और कौन सी चीज़ें बढ़ रही है, तो इसमें फाइनटेक, सॉफ्टवेयर बनने वाली कंपनी बढ़ रही है, आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, स्टार्टअप जिनको नया इन्वेस्टमेंट करना है वो कंपनी बढ़ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनना स्टार्ट हुआ है, डिफेंस पे हम लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, टूरिज़्म पे हम लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही है, जिससे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़े। अगर सर्विस सेक्टर्स बढ़ेगा तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ज़्यादा जॉब मिलेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर्स नहीं देता है। ओके, इसलिए सर्विस सेक्टर्स ओपन हुआ है। तो सर्विस सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, जो सिखाया जा रहा है वो ध्यान से पढ़ो, 10 बार पढ़ो। और कुछ क्वेश्चन से तो मैंने बताया आपको कि 10 से 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके पूछो। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, मत पढ़ो, आपको प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट ईयर, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको कंपलसरी पढ़ना ही है। ओके, जिसको लग रहा है इको बहुत इजी है उनको मैं बता रहा हूँ वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। ओके, सो थैंक यू।